রাজ্যের প্রতিটি অংশের জনগণকে আপনাদের মাধ্যমে শুভ দীপাবলি আলোর উৎসব তার অনেক অনেক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আজকে খুব আর্জেন্ট বেসিসে আপনাদের এই সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয়েছে এবং এই সাংবাদিক বৈঠকে যারা উপস্থিত রয়েছেন আমার সঙ্গে, আমার বাদিকে যিনি রয়েছেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা পুনিত আগরওয়াল, আমার ডান দিকে সেক্রেটারি আইসিএ ডক্টর প্রদীপ চক্রবর্তী রয়েছেন, এক্সট্রিম রাইটে আমাদের নাহুশ কুলকার্নি মহোদয় ডাইরেক্টর ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট আগরতলা, এবং শরৎবাবু রয়েছেন শরৎচন্দ্র দাস আমাদের প্রজেক্ট অফিসার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে ইমার্জেন্সি একটা মিটিং আমাদের সম্পন্ন হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, যেখানে মন্ত্রী পরিষদের বিভিন্ন সদস্যরা, চিফ সেক্রেটারি, ডিজিপি, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, সেক্রেটারিজ, ডাইরেক্টরস, বিএসএফ, সিআরপিএফ এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ, আমাদের বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সঙ্গে যারা সবসময় কাজ করে চলেছেন এই রাজ্যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা, আমাদের মেট্রোলজিক্যাল অফিসাররা, প্রত্যেকে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদেরকে নিয়ে এই মিটিং সম্পন্ন হয়। আপনারা জানেন যে বে অফ বেঙ্গলে যে ডিপ্রেশন তৈরি হয়েছে, নিম্নচাপ আমরা যাকে বলি, সেই নিম্নচাপের ফলে আমাদের ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল, আন্দামান এবং আমাদের রাজ্য ত্রিপুরা প্রত্যেকটি জেলায় সেখানে ভারী সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দীপাবলি শুরু হয়ে গেছে, প্রত্যেকে আমরা উৎসবের মেজাজে রয়েছি। ঠিক সেই সময় আমাদের বে অফ বেঙ্গলের যে ডিপ্রেশন বা নিম্নচাপ, সেটা আগামীকাল থেকে এক্সপেক্টেড যে ঘন্টায় 60 থেকে 70 কিলোমিটার বেগে ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে আসবে এবং হেভি রেনফল উইথ থান্ডারস্টর্ম সেখানে হওয়ার অনেক চান্স রয়েছে। বিগত দিনেও আমাদের এমন অনেক ন্যাচারাল ক্যালামিটি আমাদের ফেস আমরা করেছি, বর্ষার সিজনে ফ্লাড, এই জিনিসগুলো আমরা করেছি এবং রাজ্য সরকার সঠিক সময়ে সঠিক বন্দোবস্ত গ্রহণ করেছে। কিন্তু এবারকার যে ডিপ্রেশন বা নিম্নচাপ যেটা ধেয়ে আসছে, সেটা এই দীপাবলির মরশুম বা সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এখানে রেভিনিউ প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রয়েছেন, উনিও বলবেন কি কি সতর্কতা আমরা অবলম্বন করেছি এবং রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে কি অ্যাপিল রাখা হয়েছে সে বিষয়ে উনি বলবেন। আমি মিটিং এ ছিলাম, আমাদের আধিকারিকরা ছিলেন। রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রয়েছে সেটাকে মোকাবিলা করার জন্য। দীপাবলির মধ্যে বিশেষ করে মাতা ত্রিপুরী সুন্দরী মন্দির টেম্পল, যেখানে 2-3 দিনে প্রায় লাখো লোকের উপর সমাবেশ হয়, তাতে আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে এবং রাজ্য সরকার তার জন্য প্রশাসনকে, এসডিআরএফ যে স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ রয়েছে আমাদের, তাদেরকে, পুলিশকে, সিআরপিএফ কে, বিএসএফ কে, প্রত্যেককে, এনডিআরএফ কে, প্রত্যেককে সেখানে দায়িত্ব অর্পণ করেছে। তো আমি বিলম্ব না করে যে আমাদের আলোচনা মিটিং এর মধ্যে হয়েছে সে বিষয়ে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রেভিনিউ মিস্টার পুনিত আগরওয়ালকে বলবো যে আপনি রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে রাজ্য সরকার কি কি বন্দোবস্ত গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে একটি অবগত করবেন। नमस्कार। माननीय मोदी जी ने जैसे बताया, ये जो डीप डिप्रेशन की वजह से भारी बारिश और साइक्लोन की संभावना है, उस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक विशेष मीटिंग बुलाई थी जिसमें सभी दफ्तर के लोग थे। उसके पहले
ये 21 तारीख को एक्चुअली हमें ये IMD से पहली बार पता लगा था कि इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो रही है बे ऑफ बंगाल में, जिससे ये हेवी रेनफॉल और साइक्लोन आ सकता है। हमने 21 तारीख को ही 8 DMs को इंटीमेशन दे दिया था, उनको अलर्ट कर दिया था, उनको इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली इशू कर दिया गया था कि वो अपनी तरफ से जो उनकी क्विक रिस्पांस टीम्स हैं उसको एक्टिवेट करें, जो उनके ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एरियाज हैं जहाँ पे लो लाइंग एरियाज हैं उनको चिन्हित करके जो रिलीफ कैंप जहाँ पे खोला जा सकता है उसको देख लें, और वहाँ पे उन आइटम्स उन रिलीफ कैंप को चलाने के लिए पहले से ही प्रिपरेशन ले लें, ताकि अगर रिलीफ कैंप खोलने पड़े तो कोई लास्ट मिनट में प्रॉब्लम ना आए। जो रिलीफ मेजर्स करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, चाहे बोट हुआ, लाइफ जैकेट हुआ, कटर्स हुए, उन सब की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास। इवन जो हमारी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेज हैं TSR जो एक्ट करती है उनके पास, इवन जो सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके पास में इस टाइप के इक्विपमेंट रखे हुए हैं, तो उनको सचेत किया हुआ जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जाए। और जैसे अगर तेज बारिश होने की जो संभावना है उसमें अगर पानी बढ़ता है तो उसको पानी निकालने के लिए जो पंप्स हैं उसको इंश्योर कर लें कि वो रहें। अगर कभी तेज आंधी तूफान में बिजली जाती है तो पावर डिपार्टमेंट को सचेत किया गया है, PWD को कहीं रास्ता ओपनिंग करने के लिए जो बुलडोजर की रिक्वायरमेंट होगी उसकी व्यवस्था वो इंश्योर कर लें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बोला गया है कि जो तेज आंधी तूफान में पेड़ गाछ गिर सकते हैं तो उसको इमीडिएटली हटाया जाए, ताकि आने जाने में किसी टाइप की असुविधा ना हो। और सभी लोगों को सचेत करने के लिए स्पेशली बोला गया है DMs को कि वो पब्लिक को बताएं कि ये इस टाइप की सिचुएशन है, तो वो अपने मूवमेंट को कम करें, इधर उधर जाने के बजाय घर पे रहें और सचेत रहें, ध्यान दें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो DMs की तरफ से माइकिंग किया जा रहा है वो जाके, और आगे भी हम बोलेंगे कि सोशल मीडिया जो है उसके थ्रू हम लोग जो WhatsApp ग्रुप है, Facebook है, इनके से भी ये मैसेज पब्लिक तक पहुंचाया जा रहा है कि वो 24 और 25 तारीख में जब तेज बारिश होने की संभावना है उसमें उससे बच के रहें। और इसके अलावा जो भी कोई रिपोर्टर DMs के साथ हम लोग का लगातार कांटेक्ट बना हुआ है, हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन IMD से हमें मिल रही है, पहले अब जैसे जैसे 24-25 ये घटना पास आ रही तो हमें IMD से और जल्दी हमें उसके अपडेट मिलेंगे कि ये जो मूवमेंट है साइक्लोन का, स्टॉर्म का, वो सही डायरेक्शन में है या उसमें कोई चेंज आया है, तो वो हम साथ ही साथ DMs को अवगत कराते रहेंगे। और NDRF जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसकी हमारे पास 2 टीम्स हैं जो गोकुलनगर में स्टेशन है, उसकी एक टीम को माताबाड़ी दिवाली मेला के पॉइंट से उनको माताबाड़ी भेजा हुआ है। और इसके अलावा हम लोग ने 5 टीम्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA से रिक्वेस्ट किया है कि 5 और ऐसी टीम को स्टेट में भेजा जाए, ताकि पूरे स्टेट में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हम लोग सही मात्रा में रिलीफ मेजर दे पाए। तो ये 4 टीम्स को 5 टीमें 4 ऑपरेशन के लिए रहेंगी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए रहेंगी। तो एक को कुमारघाट, एक को तेलियामुरा, उदयपुर और शांति बाजार, इन 4 लोकेशन में इनको स्टेशन किया जाएगा और वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ये रिलीफ मेजर्स को मॉनिटर करेंगे। और आज की मीटिंग को ध्यान में रखते हुए स्पेशली ये डिसीजन लिया गया कि सभी लाइन डिपार्टमेंट जो हैं वो इमीडिएट स्टेप लें अपनी तरफ से प्रिपेयरनेस के लिए। जैसे मैंने बताया पावर डिपार्टमेंट, PWD, हेल्थ डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, RD डिपार्टमेंट, तो इन सबको बोला गया। और जो तेज बारिश में किसी टाइप से प्रॉब्लम ना हो तो इवन रोड पे व्हीकल का मूवमेंट वो भी रेगुलेट किया जाए कल और परसों, अननेसली बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो। इवन जो स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें यह निर्णय लिया गया कि 3 दिन 24, 25, 26 वो तीनों दिन बंद रहेंगे। और जो जितने भी अधिकारीगण हैं जिनका इसमें रिलीफ मेजर्स की रिक्वायरमेंट होगा, तो सभी दफ्तरों के सभी ऑफिशियल्स की जितनी भी छुट्टी एक अगले हफ्ते तक की थी वो सब कैंसिल कर दी गई हैं। सब ऑल आर सपोज टू रिपोर्ट टू ड्यूटी और अपनी तरफ से अपने दफ्तर
में जो रिलीफ मेजर्स में या इस पूरी प्रिपेयर्ड में उनको हेल्प करनी है उसके लिए वो वापस आए। और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो रिवर्स में वाटर लेवल है वो कब एक डेंजर लेवल से ऊपर जा रहा है, क्रिटिकल लेवल पे आ रहा, एक्सट्रीम डेंजर लेवल पे जा रहा है, वो तो लगातार मॉनिटर करते रहेंगे। और कुछ कुछ जगह पे जैसे बोला गया चकमा घाट या सोनामुरा, तो उन सब को देखते हुए जो उनके अभी जो डैम हैं उसमें कितना स्तर बना के रखा जाए उस पर वो लगातार नजर रखेंगे और उस हिसाब से उसमें वाटर लेवल को रेगुलेट करेंगे। और इस पूरे रिलीफ मेजर्स में पब्लिक को भी यही अपील की जा रही है कि वो अपनी तरफ से अपने मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करें। और मातावाड़ी टेम्पल के बारे में जो ये दिवाली मेला है, ये जैसे कल त्योहार का समय है और 24-25 को वहाँ पे मेला लगता है। ये देखते हुए कि वहाँ पे खूब ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे और अगर ऐसा कोई अगर तेज आंधी तूफान से वहाँ कोई समस्या आए उसको अवॉइड करने के लिए यही लोगों को अपील की जा रही है कि वो इस बार मौसम को देखते हुए अपने उसको थोड़ा मूवमेंट को रेगुलेट करें। वहाँ पे विशेष व्यवस्था भी की गई कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना जुटे। और वहाँ पे इस बारे में जो निर्णय लिया गया है कि पावर, पीडब्ल्यूडी, आरडी, हेल्थ डिपार्टमेंट वो सब इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एग्जिट पॉइंट जो हैं वो सही से मतलब स्ट्रेंथन हैं, उनमें किसी टाइप का कोई इस वजह से समस्या ना है। हेल्थ टीम्स जो हैं उनको संख्या बढ़ाने के लिए बोला गया है। और वहाँ पे भी क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, व्हीकल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और फोर्सेस भी स्पेशल ध्यान देगी। स्पेशल ट्रेन 24 और 25 को चलाने की बात कही गई थी, लेकिन क्राउड को कंट्रोल करने की दृष्टि से और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको बंद रखने का ही निर्णय लिया गया है। और फिशरमैन जो हैं इन जनरल इन दिनों में 24-25 तारीख में वो ना जाएं ताकि किसी अप्रिय घटना के होने की संभावना ना रहे। और एनजीओज एंड क्लब्स, मतलब जो ऑफिशियल्स हैं वो तो फिर काम कर रहे हैं, लेकिन लोकल पब्लिक को आपदा मित्र जो है हमारे, या सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, या लोकल पंचायत में जो लोग हैं, उन सब के साथ साथ हमें एनजीओ क्लब्स उन लोगों की सहायता लेनी होगी, क्योंकि एक कॉमन समस्या है, मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हमें मिलजुल के ही इसका समाधान ढूंढना होगा। तो इसके लिए लोग, ये सबसे आह्वान है कि सभी लोग सामने आए और किसी को भी अगर समस्या में देखें इमीडिएटली इन जो भी प्रशासन, सब डिवीजन, वीडियो, डीएम उनको इंटीमेट करें और वहाँ से फिर उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। तो ये मेन ओवरऑल दृष्टि। और अगले 24-25 तारीख में हम लोग नजर बनाए रखेंगे और जो भी आईएमडी से हमें अपडेट्स मिलेंगे वो हम नीचे प्रशासन तक पहुंचाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, और बाकी मीडिया के थ्रू भी हम उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। स्पेशल ट्रेन का जो भी सब स्पेशल ट्रेन, हाँ सर, वही स्पेशल ट्रेन जो मातावाड़ी टेम्पल के लिए 24 और 25 तारीख को चलाने की बात कही गई थी, वो अब लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से देखते वो बंद रही। तो ये है। Any question? সরকারি কর্মচারীদের যে এক সপ্তাহ ছুটি বাতিল করা হয়েছে কবে থেকে? आज से कि The holiday. So from tomorrow, with effect from tomorrow. Immediate effect. Next 1 week. আর এখানে একটা ব্যাপার, ভেহিকল মুভমেন্ট নিয়ে দুইটা লাইন আছে, ঠিক পরিষ্কার না। মুভমেন্ট অফ ভেহিকল শুড বি রেগুলেটেড থ্রু আউট দ্য স্টেট অন 25-26, আবার মুভমেন্ট অফ ভেহিকল টু বি রেগুলেটেড থ্রু আউট, এটা টাইপিং মিস্টেক বলবো, এটা সেমই লাইন দুইবার আসছে, ডেটটা একটু চেঞ্জ আছে। So date will be 24 and এটা 24-25 থাকবে। 24-25 মেন, क्योंकि जो बारिश है 24 और 25 तारीख है, এটা উপরের লাইনটা বাদ যাবে। ऊपर वाला लाइन बात है, ऊपर वाला लाइन बात है। Today is 23rd. তো এখন পর্যন্ত তো ভালো। তো এক্সপেক্টেড যেটা কালকে, that is 24 and 25 এই দুদিন। তো কাল দিওয়ালি মেলা,
পরশু দিওয়ালি মেলা চলবে মাতাবাড়িতে। আর আপনারা জানেন যে মাতাবাড়িতে এবার আমাদের নতুন কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, স্বাভাবিকভাবে মাটি নরম মাটি থাকবে, সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তো ক্রাউড যেন গ্যাদারিং না হয় সেই জিনিসটার উপরেই আমরা লক্ষ্য রেখে সমস্ত বন্দোবস্ত করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। এবং ডিএমকে প্রতি আধিকারিকদেরকে, লাইন ডিপার্টমেন্টদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য। এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, সিআরপিএফ, বিএসএফ, স্টেট পুলিশ এবং আমাদের পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট, রেভিনিউ, সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকদেরকে বলা হয়েছে সমস্ত ছুটি ক্যান্সেল করার জন্য এবং স্ট্যান্ড বাই থাকার জন্য যে কোনো যে ন্যাচারাল ডিজাস্টার যাই হবে সেটাকে ফেস করার জন্য। ঠিক আছে? হ্যাঁ, শেল্টার হাউস ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ প্রতি জায়গায় আমাদের প্রতি জায়গায় স্কুল থাকবে, অফিসগুলো থাকবে। এবং তার জন্য বিশেষ করে দুটো দিক, স্কুলের যে 3 দিনের যে ছুটি বলা হয়েছে সেটা এক হচ্ছে স্টুডেন্টদের যেন কোনো রাস্তায় অসুবিধার মধ্যে পড়তে না হয় এবং স্কুলগুলো যেন আমরা ফ্রি পাই, যাতে সেখানে অকুপাইড না থাকে, যাতে আমরা শেল্টার হাউস হিসেবে তাদেরকে ব্যবহার করতে পারি। তো all precautionary measures have been initiated by the department, I mean by the government. So hope for the best. Wish you all happy Deepavali once again. Thank you.